Good morning, class. Today we are continuing our chapter 5, that is basic geometrical ideas. Yes, students. Now let us know that what is angle. Okay. Today you will learn about angle. Ki what is angle? Okay. What is the vertex of angle? What is the arms या sides of arms or sides of angles? Okay, students. Yes, after knowing these topics we will learn about the interior of angle, exterior of angle and the point on the angle. Okay, after learning this we will continue our third exercise. Yes, let us have a look. Angles. You have already seen the hands of a clock and the open blades of a pair of scissors. The hands of a clock or scissors are hinged in the center, that is the initial point, and the two arms are portions of two rays having the same initial point. So, an angle is figure formed by two rays with the same initial point. The two rays forming the angle are called arms or sides of the angle, and the common initial point is called the vertex of the angle. Interior and exterior of an angle. Observe the figure shown here. We can observe that an angle divides a plane into three parts. The part that exists inside the angle is called interior of the angle. For example, points U, V, W, X, S, T together form the interior of the angle PQR. The part that exists outside the angle is called the exterior of the angle. For example, points A, B, C, D, E together form the exterior of the angle PQR. The boundary of the angle formed by its two arms is called the angle. For example, points P, L, M, Q and R together form the boundary of the angle. In the figure shown here, the shaded part is the interior of the angle MNO. And outside part of the angle MNO is the exterior of the angle MNO. The arms MN and NO form its boundary on which points M, N and O lie. Yes, student, you have learnt about the angles by the video. So let us summarize it. Yes, what is angle? It is a figure formed by two different rays from the same initial point. देखिए क्या कहता है कि एंगल एक ऐसी फिगर है जो बनती है टू डिफरेंट रेज आपको पता है क्या होता है, ये जिसमें एक एंड पॉइंट होता है एंड अनदर इज इन द फॉर्म ऑफ एरो. ओके, रे आपको क्लियर है. Yes, it is a figure formed by two different rays from the same initial point. तो student देखिए, this is the angle. Two rays are here, one ray and two ray, or originated from the same initial point. Originated from the same initial मतलब beginning point. दोनों rays का देखिए starting point क्या है O, beginning point क्या है O. तो इसी को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं. तो कहता है इट इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज, टू अलग अलग रेज से बना होता है ये फिगर फ्रॉम द सेम पॉइंट, इनिशियल पॉइंट. और वो टू रेज कहाँ से निकलती है, एक ही पॉइंट से. ओके, सो दिस इज अ एंगल. एंड स्टूडेंट, व्हाट आर दीज रेज? इन रेज का क्या नाम होता है? तो देखिए, इन रेज को हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ अ एंगल, और यू कैन से दैट साइड्स ऑफ अ एंगल. ओके, किसी भी एंगल की साइड्स हैं ये, टू साइड्स या आर्म्स भी आप इसे बोल सकते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. ये क्या है एंगल का? वर्टेक्स ऑफ अ एंगल. तो पढ़िए, द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल, जो टू रेज हैं जो एंगल को बना रही हैं, आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल. एंगल की आर्म्स और साइड्स. ओके, एंड द कॉमन एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है दोनों रेज का जो कॉमन है,
that is called vertex of the angle, vertex of the angle. तो here in this figure OA, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से आपको बोलना है बिकॉज इट इज अ रे, तो रे हमेशा वहां से स्टार्ट होती है जो एंड पॉइंट होता है. OA and OB are the arms and O is the vertex of an angle. And what is the name of this angle? Angle AOB, or you can say that angle BOA. Okay student? Yes, देखिए इस एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं. हमेशा जो ये वर्टेक्स होता है ये मिडल में रहता है. वर्टेक्स कहाँ रहता है? मिडल में. अब चाहे आप स्टार्टिंग यहाँ से कीजिए AOB, चाहे आप बोलिए BOA, पर देखिए बीच में आपको इस वर्टेक्स को रखना है. AOB बोलिए चाहे BOA, और ये किसका साइन है? एंगल का. ओके यस, एक पॉइंट है द सिंबल दिस, ये वाला जो सिंबल है ये आपको जरूर लगाना है जब आप किसी एंगल का नेम लिखेंगे. इट इज यूज टू डिनोट एन एंगल, ये किसी एंगल को दर्शाने का काम करता है कि इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप एंगल का नेम लिख रहे हैं. ओके स्टूडेंट? यस, नोट, कुछ नोट है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा. इन नेमिंग एन एंगल, जब किसी एंगल की नेमिंग करते हैं तो वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन मिडल. मैं आपको बता चुकी हूं कि वर्टेक्स को हमेशा कहाँ रखते हैं? बीच में. ओके, वी कैन ऑल्सो नेम एन एंगल बाय सिंपली राइटिंग इट्स वर्टेक्स. तो देखिए आप इसका नेम सीधा क्या भी कह सकते थे, आप इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ओ. क्या भी लिख सकते हैं? एंगल ओ. ओके स्टूडेंट? और अनदर नेम क्या है? AOB, बीच में ओ आना चाहिए, या फिर BOA, और एंगल का साइन लगाएंगे. ओके स्टूडेंट? तो देखिए आगे क्या कहता है? बाय सिंपली राइटिंग इट्स वर्टेक्स लिख के भी आप इसको लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंगल AOB लिख सकते हैं और एंगल BO लिख सकते हैं. कैन बी डिनोटेड एज, और इसको क्या भी लिख सकते हैं? सिर्फ एंगल O. ओके, सिर्फ वर्टेक्स वर्टेक्स. इन केस टू और मोर देन टू एंगल शेयर द सेम वर्टेक्स, क्या कहता है कि बाय चांस एक वर्टेक्स को शेयर करने वाले 2 या 2 से ज्यादा एंगल हो जाएं. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल. कितने एंगल हो गए? 3. और तीनों एंगल का, इस एंगल का देखिए 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल, और तीनों एंगल का बचे एक ही वर्टेक्स है. व्हाट इज इट्स? कॉर्नर पॉइंट एक ही है, O. तो क्या अब आप इस एंगल को एंगल O लिख सकते हैं? सिर्फ एंगल O? तो नो स्टूडेंट, अब क्योंकि एक वर्टेक्स को शेयर करने वाले 2 या 2 से ज्यादा एंगल है, तो अब आपको इसका कंप्लीट नेम देना पड़ेगा. कंप्लीट नेम देना पड़ेगा. मान लीजिए अब आप इसको एंगल O नहीं लिख सकते, अब इसका नाम वही बनेगा एंगल AOB. इसका क्या बनेगा? एंगल BOD. ओके, इसका क्या बनेगा? BOD बोलिए, चाहे यहां से स्टार्टिंग कीजिए, एंगल DOB. ओके, और थर्ड इस एंगल का नेम क्या देंगे? या तो एंगल DOE या EOD. ओके स्टूडेंट? अब इसको एंगल O मत लिखिएगा क्योंकि इस वर्टेक्स को 3 एंगल ने शेयर किया हुआ है. हाँ, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ओके, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो अब इस एंगल को आप क्या क्या लिख सकते हैं? एंगल O भी लिख सकते हैं, एंगल AOB और एंगल BOA. ओके, तो इसीलिए लिखा इन केस 2 और मोर देन 2 एंगल शेयर द सेम वर्टेक्स. अगर 2 या 2 से ज़्यादा एंगल किसी सेम वर्टेक्स को शेयर करते हैं तो देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिनोट देम बाय द वर्टेक्स ओनली. तो सिर्फ वर्टेक्स लिख के उस एंगल का काम नहीं चलेगा. आप उनको नहीं पॉसिबल है उसका सिर्फ एंगल का नेम आप वर्टेक्स से दिखा दें, आपको पूरा नेम उसका लिखना पड़ेगा वर्टेक्स को मिडल में रख कर. यस स्टूडेंट, नाउ देयर इज अनदर टॉपिक. इट इज़ वेरी इजी. देखिए, दिस इज अ एंगल and what is the name of this angle? You can write it, this is a angle, you can write it angle Y. यहाँ से स्टार्ट कीजिए, Y
वर्टेक्स को मिडल में रखिए, वाई ओ एंड लास्ट क्या है एक्स। ओके स्टूडेंट, वाई ओ एक्स। ओके, या फिर आप इसका नेम दे सकते हैं एक्स ओ वाई, या हम लिख सकते हैं एक्स ओ वाई। या थर्ड वे क्या है, सिर्फ वर्टेक्स से डिनोट कीजिए, क्योंकि इस वर्टेक्स को और किसी एंगल ने नहीं शेयर किया हुआ, तो इसको लिख सकते हैं सिर्फ एंगल ओ। ओके स्टूडेंट, नाउ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अंदर का पार्ट है, इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा तो हम कहेंगे वो पॉइंट एंगल के इंटीरियर में है। ओके स्टूडेंट, ये सारा शेडेड, देखिए ये सारा शेडेड पार्ट तो एंगल के इंटीरियर में है। और अगर एंगल की आर्म्स हैं ये OX और OY क्या है, एंगल की आर्म्स। तो देखिए B पॉइंट आर्म के ऊपर है, इधर S पॉइंट आर्म के ऊपर है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे एंगल की बाउंड्री पे है, ऑन द बाउंड्री। और थर्ड देखिए बच्चे, एंगल की बाउंड्री से बाहर, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ एंगल, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। तो एल को हम कहेंगे ये एक्सटीरियर ऑफ एंगल पे है। ओके, तो हमारे पास एंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एंगल और ऑन द बाउंड्री ऑफ एंगल। ओके, अंदर बाउंड्री पे या बाहर, तो आपको देखना है कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। Yes student, let us start our exercise 5.3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आपने बुक में ही करेंगे। अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम है दोनों रेज का, तो उस फिगर को क्या बोलते हैं, तो अभी आपने पढ़ी है एंगल की डेफिनेशन, तो दैट इज कॉल्ड एंगल। नेक्स्ट, एन एंगल QPR इज रिटन एज एंगल P। ठीक है, एक एंगल है QPR, उसको आपने एंगल P भी लिख दिया है, तो उसका इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज, तो उसका दूसरा नाम क्या होगा ये आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, मैंने आपको तीनों तरह से लिखना बताया है, सिर्फ वर्टेक्स से भी, ऐसे भी, और इसका अनदर नाम आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, यस, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर नेम द 3 रेज। देखिए ये फिगर दे रखी है बच्चे, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये है। ओके, इसमें आपको कहा है 3 रेज कौन कौन सी हैं वो बताइए, तो आपको पता है एक रे मैं बताती हूँ PA, अब बाकी की रेज आप खुद लिखेंगे। नेम द 3 एंगल्स, अब 3 एंगल्स बताइए। यस स्टूडेंट, इसमें 3 एंगल्स हैं, कौन कौन से, देखिए एक ये एंगल होगा 1 रे 2 रे और सेम इनिशियल पॉइंट, तो इसका नेम क्या है, एंगल APB। अब इसका नेम एंगल P मत बोलना, क्योंकि इस वर्टेक्स को 2 एंगल ने शेयर कर लिया, तो क्या बना इसका नेम बच्चे, APB। ओके, या आप इसका अनदर नेम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, B वर्टेक्स को मिडल में रखना है, BPA, क्या लिख सकते हैं, BPA। ओके स्टूडेंट, यस, एक एंगल आपके पास ये है, इसकी नेमिंग आप खुद लिखेंगे, 2 एंगल हो गए। और थर्ड एंगल ये पूरा भी है स्टूडेंट, बीच वाली रे को भूल जाइए, सिर्फ एक ये और ये इसका वर्टेक्स हो गया। क्या नेम बना इसका, एंगल APC, इस पूरे का नाम है APC, या बोलिए CPA, हम ये भी लिख सकते हैं एंगल CPA। तो देयर आर 3 एंगल स्टूडेंट, 1 2 और 3। ओके, यस, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो ये फिगर दे रखी है, नेम द एंगल्स, एंगल्स के नेम लिखिए, इंडिकेटेड बाय द यूजिंग 3 लेटर्स। ओके, 3 लेटर्स के साथ हर नेम को रिप्रेजेंट कीजिए। यस, फर्स्ट पूछा है एंगल 9 का नेम क्या होगा, कहाँ है एंगल 9, ये देखिए, दिस इज एंगल 9। ओके, अब इसको देखना है ये एंगल किससे बना है, तो ये देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, आपको पता है बीच में रखते हैं वर्टेक्स को, यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए चाहे यहाँ से कीजिए, तो 9 का नाम क्या हो गया, एंगल का साइन लगा के FGH। ओके, एक और देखते हैं एंगल 5, एंगल 5 का नाम क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज एंगल 5, तो क्या नाम होगा इसका, ये देखिए ये जो कॉर्नर है ना, इसको आप बीच में रखेंगे। अब ये देखिए एंगल कैसे बना है, 1 आर्म
और ये 2 आर्म। ओके, तो इसका नेम हो जाएगा DCE, या बोलिए एंगल ECD। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप सभी की नेमिंग लिखेंगे। एक एक लिख दीजिए, एक एक वे में, ज़रूर नहीं कि आप इसके दोनों या तीनों नेम को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल सिंगल नेम लिख दीजिए। ओके, यस। 4th क्वेश्चन सेम है बच्चे, आपको वही दे रखा है, सभी आपको एंगल 16, एंगल 4, एंगल 10 सबके नेमिंग करनी है। तो देखिए 1 करके देखते हैं, हम एंगल 4 को देखेंगे। देखिए इस फिगर में ढूंढिए एंगल 4 कहाँ लिखा हुआ है बच्चे, दिस इज एंगल 4। अब ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, इसका नाम है F, वर्टेक्स का नाम क्या है F। अब एंगल 4 की स्टार्टिंग देखिए EFD या DFE। ओके, जहाँ भी वो एंगल बना है उस पॉइंट को बीच में रखना है, और ये देखिए वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 1-2 पार्ट हम अपने बोर्ड पे करते हैं। तो देखिए आपको बहुत सिंपल है, आप किसी का भी नेम इजीली लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे एंगल 12 का नेम लिखना है। ओके, तो आप ये देखिए एंगल 12 का ये बना हुआ एंगल 12, ये कहाँ से बना है, देखिए ऐसे बना है, ये दिस। ओके, और ये जो उसका कॉर्नर पॉइंट है इसको आप बीच में रखेंगे, इसका मतलब F को बीच में रखना है। अब देखिए कहाँ से आया ये G, ये देखिए GF और A। ओके, या AFG, तो इसको आप लिखेंगे AFG। ओके, अगर कोई आपसे पूछे 2 का नेम बताइए, तो पहले देखिए 2 का कॉर्नर पॉइंट है A, आया कहाँ से, कैसे बनाइए, इसको बना के देखिए ऐसे, V कैसे बन रहा है, ऐसे। तो देखिए B A और कहाँ ख़त्म है G, BAG। ओके, अब आप मुझसे 14 का पूछते हैं तो क्या होगा 14 का, देखिए कॉर्नर पॉइंट को E को बीच में, अब V बनाइए, ये ऐसे बन गया V। तो कहाँ से आया है D E और ख़त्म कहाँ पे है F पे, या बोलिए एंगल FED, क्या लिख सकते हैं एंगल DEF, या एंगल 14 को, या एंगल FED। ओके स्टूडेंट, दोनों ही इसके नाम हैं। अगर 11 को लिखना है, ठीक है, तो 11 का कॉर्नर पॉइंट क्या है C, और V बनाइए ऐसे करके, ये V बन गया इसका। ओके, 11 को कैसे बनाएंगे, इसको इसने बनाया है, इसने, है ना। तो क्या नेमिंग देंगे यहाँ से G C, और कहाँ ख़त्म है ये V, D, GCD यहाँ तक। ओके स्टूडेंट, 17 का बताइए, 17 कैसे बन रहा है, इससे, यहाँ से शुरू है इस पॉइंट से ऐसे, और यहाँ पे ख़त्म है। तो क्या होगा एंगल FG और C, FG और C। ठीक है बच्चे, तो जहाँ भी वो एंगल है उसका कॉर्नर पॉइंट बीच में रख के, और जहाँ से वो बनाया गया है V की शेप ढूंढ लीजिए, वही आप उसकी स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट ले लेंगे। 5th क्वेश्चन में स्टूडेंट, नेम द फॉलोइंग एंगल इन 3 डिफरेंट वेज, तीनों वेज में आपको इनको नेमिंग करनी है। तो इसका 1 नेम क्या है स्टूडेंट, ये एक एंगल है, इसका 1 नेम है कि वर्टेक्स में ही लिख दीजिए एंगल B, क्या लिखेंगे एंगल B। अनदर नेम क्या है एंगल ABC, एंड अनदर नेम क्या है एंगल CBA। ओके, बाकी की नेमिंग आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। समझ आया इसकी नेमिंग क्या होगी। 1 नेमिंग तो एंगल B वर्टेक्स की फॉर्म में लिख दीजिए, क्योंकि इस वर्टेक्स को और किसी एंगल ने नहीं शेयर किया। सेकंड क्या होगी एंगल ABC, वर्टेक्स मिडल में आएगा। और थर्ड क्या होगी एंगल CBA। ठीक है बच्चे, B बीच में रहेगा, C आगे आ जाएगा, A पीछे। ओके, 6th क्वेश्चन वेरी सिंपल, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल HIJ। बच्चे कहाँ है एंगल HIJ, देखिए HIJ ऐसे आपको बनाना है। तो जो ये बीच में I है तो आप समझ जाइए दिस इज द एंगल I। ओके, तो इस एंगल के एक्सटीरियर मतलब बाहर कौन सा पॉइंट है वो लिखिए, कौन कौन से हैं, इंटीरियर अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो लिखिए, और ऑन एंगल HIJ और एंगल के ऊपर जो है उनके नेम लिखिए। ये स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 6 में आप किस तरीके से करेंगे।
एंगल HIJ, पहली बात तो आप इसको रीड करना सीखिए। देखिए दिस इज एंगल HIJ, I बीच में है तो इसका जो वर्टेक्स है वो होगा I, ओके। अब HIJ तो कौन सा एंगल बना ये वाला, तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ओके। अब आपसे क्या पूछा है कि एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है इस एंगल के, तो देखिए एंगल P लिख दिया मैंने, बाकी आप खुद ढूंढेंगे बाहर, ओके। इंटीरियर में कौन से एंगल L मैंने बताया, बाकी आप खुद बताएंगे, ओके। और ऑन द एंगल, तो एंगल M इज ऑन द एंगल HIJ, तो बाकी आप खुद लिखेंगे पॉइंट्स। यस, सेम क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है। ये आपको एंगल दे रखा है, एंगल ABF, ओके, या इसको आप क्या ही बोल सकते हैं एंगल B। तो वो क्या कहता है, वो पॉइंट्स बताइए जो एंगल B के इंटीरियर में है। तो ये एंगल B है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके नेम लिखिए। एक्सटीरियर मतलब जो इसके बाहर हैं उसके नेम, एंड लाइंग ऑन B, और जो B के ऊपर हैं उनके नेम्स लिखिए, ठीक है, जो B के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल in your fair notebook and you have to complete your exercise 5.3 in your fair notebook। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने आपको ये पूरी करने के लिए कहा है। कोई भी डाउट आता है किसी पार्ट में तो उसको पहले प्रैक्टिस नोटबुक में कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका, और मुझसे चेक करा लीजिए या मुझसे प्रॉब्लम ले लीजिए, उसके बाद ही अपनी फेयर नोटबुक में करिए, ओके।